आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. लिटिल लेट, बट आई रियली होप you all would have enjoyed the festival of light, love and affection that is known as Deepavali or Diwali. It's being celebrated after Dashera, and today is Govardhan Puja, if I'm not wrong, and tomorrow will be Bhai Dooj, which is being a well-known festival as far as sisters are concerned. They pray for their brothers to make them in a secure condition. And in between, the World Cup semi-final number 1 will be played tomorrow. That is in Mumbai, Wankhede, where India lifted the World Cup after 28 years on April 2nd, 2011. India versus New Zealand, the repeat final of 2019 World Cup, where India lost that match while chasing 240 runs, somewhat 230 to 40, and 30 minutes of bad patches, and India lost that game. Not to forget, there are so many records which are not in favor of India, but yes, in this tournament, India is unbeaten side. They have won 9 of 9 their matches which has been played in the round robin series or tournament, whatever you want to say, simply say. So, as always, I have with me Mr. Ramkishan ji from Lucknow on phone call. Hello and welcome on the show after a very long time. Wish you a very happy Diwali as well. जी हाँ, मेरी तरफ से भी सर्वप्रथम सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पुनीत पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली से कहने से पहले 5 दिवसीय दीपोत्सव, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज, यानी 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व जो भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और कहने को तो सेमीफाइनल है, लेकिन बताने को बहुत कुछ है हमारे पास, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जी सिलसिलेवार तरीके से बात होगी। नमस्कार सभी को। So India and New Zealand are going to play the repeat semi-final of the World Cup. As I told you earlier in the conversation, I really hope it will be India's day, but more often than not, many of the Indian people, many of the supporters are saying that it can be New Zealand who's going to win the game. But it's not the case. Who's going to win? It will be decided tomorrow only, after the match is being played, after the last ball is being bowled. So let's discuss how the things will pan out for India and New Zealand, where both the teams are standing right now. India is on top and New Zealand is on the bottom as far as 1, 2, 3, 4 are concerned. Other than that, Netherlands on 10, and England has qualified for the Champions Trophy, which will be played in Pakistan in 2025. Pakistan is also in the trophy because they are hosting the tournament, so they will be automatically qualified. Other than that, there are so many teams who are going to be a part of that Champions Trophy. Netherlands, unfortunately, not qualified. Afghanistan, I think, qualified for the Champions Trophy, if I'm not wrong. So, इसके बीच में जब हमने शोज नहीं किए तब से लेकर अब तक बहुत कुछ घटा क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, क्रिकेट की दुनिया में। तमाम लीग मैच समाप्त हुए। नीदरलैंड से भारत का मैच हुआ, जहां भारत ने 400 रन बनाए, 410 रन, 411 रन के जवाब में नीदरलैंड की टीम 250 रन पर ऑल आउट हो गई। और एक अजीब बात यह हुई कि भारत ने अपने 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। उनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, आई थिंक नहीं, सूर्य कुमार यादव शायद, हाँ सूर्य कुमार यादव, ये सब शामिल थे। और रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक विकेट भी मिला। अंतिम विकेट बल्कि रोहित शर्मा को मिला, विराट कोहली को 9वां मिला होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ, जी हाँ। और ये आपने देखा अजीबो गरीब अजूबे वाली चीज। बहरहाल विराट कोहली ने भी उस मैच में अर्धशतक लगाया। केएल राहुल ने एक जबरदस्त पारी खेली। श्रेयस अय्यर भी अच्छे लय में नजर आया, उन्होंने भी एक शतक किया। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ शुरुआत थी उस मैच में भी, हमेशा की तरह, और
उस टेम्पलेट को मुझे लगता है रोहित शर्मा को बनाए रखना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल में भारत को कुछ करना है तो। और अगला जो शुरू का आधा घंटा होता है उसमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खैर, तो इस तरह से नेदरलैंड्स 250 पर ऑल आउट हुई और भारत 160 रन से उस मैच को जीत गया, जो कि उसकी 9वीं जीत थी। उससे पहले और ये मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने मैच जीते, तमाम टीमों ने, इंग्लैंड ने अपने मैच जीते, पाकिस्तान के पास कोई चांस था नहीं। 287 रन से हराना था इंग्लैंड को, जो नामुमकिन तब हो गया जब पाकिस्तान टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करने पर मजबूर हो गया। खैर, ये सब चीजें बीत चुकी हैं, इस पर बात करने से कोई फायदा है नहीं। भारत न्यूजीलैंड कल, क्या लगता है कौन सी टीम के पास ज्यादा एज है? हाँ, मैंने कई गली कूचों में जाके बात की कि सेमीफाइनल बड़ा हाईलाइटेड सेमीफाइनल चल रहा है। अब भारत और न्यूजीलैंड का 19 में भी यही सेमीफाइनल हुआ था। भारतीयों को मायूसी हाथ लगी थी, इंग्लैंड से खाली हाथ वापस आना पड़ा था। तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो वाकया दोबारा रिपीट हो, लेकिन हाँ, जिन गली कूचों से निकल रहा हूँ सब लोग मेरे को यही कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही 2019 का इतिहास दोहराया जाए। कई लोग मेरे से कह रहे हैं, मैंने कई न्यूज़ चैनल को पढ़ा, कई मैंने सर्च किए यूट्यूब पे, कई चीजें हैं, तो सब में लिख के आ रहा है कि ये है वो है, कहीं ये ना हो जाए वो ना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अभी वो पूर्व कप्तान MS धोनी के वो घाव भरे नहीं होंगे। वो रनआउट उनके सपनों में आता होगा कि आखिर वो गलती हुई तो हुई कैसे। और आज वो मौका है, वो मौका भी है, वो दस्तूर भी है कि आप उन सपनों को भूल सकते हैं, उन आंसुओं को पोंछने का समय है और आपको उन चीजों पे सोचने का समय है कि आखिर हमसे कहाँ चूक हुई थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत को संभल के फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। आपको जरूरत से ज्यादा अटैकिंग नहीं होना है और जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव यानी शेल में नहीं चले जाना है। संजय बनर्जी साहब जो कमेंटेटर हैं हमारे आकाशवाणी के, उनके यदि शब्दों में कहूं तो दबाव को ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक कह रहे हैं आप। बहुत से कमेंटेटर्स, बहुत से क्रिकेट पर जो लिखने पढ़ने वाले हैं, वो लोग तमाम चीजें लिखते पढ़ते आए हैं पिछले कई दिनों से, जब से डिसाइड हुआ है कि भारत न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुंबई, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, में खेलेगा। और ये ना भूलें आप, जब इंग्लैंड में मैच हुआ था ना, तो वो मैनचेस्टर ही था और भारत में भी वो मैनचेस्टर ही मान सकते हैं आप, क्योंकि मुंबई की पिच हालांकि उतनी बेहतर पिच नहीं होगी बॉलर्स के हिसाब से, उतना ज्यादा उछाल भी शायद ना हो जो। और एक अच्छी खबर ये है भारत के लिए कि मैट हेनरी पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। तो मैट हेनरी है नहीं जिन्होंने भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया था, वो फिलहाल इस टीम में नजर नहीं आएंगे। हाँ, ट्रेंट बोल्ट हैं और फर्गुसन हैं, ये दो ऐसे बॉलर हैं जो खराब विकेटों पर भी विकेट लेना जानते हैं। क्या ट्रेंट बोल्ट की बॉल हिलेगी या नहीं हिलेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इस पर कल ही खुलासा हो सकता है। वो पिच क्यूरेटर पर निर्भर करेगा, पिच कौन सी दी जाएगी। हालांकि जो सुनने में आया है वो ये, जिस पर मैक्सवेल ने 201 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी 128 गेंदों में अफगानिस्तान के खिलाफ, वो मैच कौन भूल सकता है। उसी पिच का इस्तेमाल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल नंबर 1 में किया जाएगा, जो कि 5वीं पिच होगी, सेंटर की पिच है। तो उस पर ज्यादा मुझे लगता है आधे घंटे के जो बाद का समय है, उसके बाद बॉल अच्छे से बैट पर आती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ड्यू शायद थोड़ी थोड़ी गिरेगी, और अगर ड्यू गिरेगी तो मैं समझता हूं कि भारत को कुछ टॉस जीतकर पहले शायद भारत फील्डिंग करना प्रेफर करेगा। क्या समझते हैं आप, क्या लगता है? मुझे लगता है कोई भी टीम टॉस जीते, वो मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। मेरा अपना मानना है कि बड़ा स्कोर लगा के टीम को दबाव में लाना चाहेगी। लेकिन हाँ, फिर मैं कह रहा हूं कि यदि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की तो खतरे से खाली नहीं है। जो मुझे लगता है निगाहें होंगी, सब लोग विलियमसन को कह रहे हैं, मैं रचिन रविंद्रा पे मेरी निगाहें होंगी कि रचिन रविंद्रा इन फॉर्म ओपनर हैं। और यदि उस ग्राउंड पे ये मैच होगा ना, तो मुझे बड़ा अंदेशा लग रहा है कि यहाँ विलियमसन और विराट कोहली की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और क्या
न्यूजीलैंड की तरफ से कोई मैक्सवेल आएगा, लेथम है, मिचेल है, रविंद्रा है, विलियमसन है और नीचे मार्क चेटमैन भी हैं। तो क्या न्यूजीलैंड की तरफ से कोई मैक्सवेल आएगा या क्या इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार का तूफान आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, ये समय बताएगा। लेकिन अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लें आगे की। जो पता है मुंबई का जो मैदान है ना जी, वो सूर्य कुमार ऐसा लगता है वहां अपने बैट और शॉट्स गिरवी रख कर आते हैं, जब जाते तब रन बनाते हैं। तो वो खरीद रखा है मैदान उन्होंने, वो उनको बिलोंग करता है। आपने एक बात और बताई, श्रेयस अय्यर भी मुंबई से ज्यादातर उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है और वो फॉर्म में आ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने वो शतक लगाया, मैं पढ़ रहा था किसी का कमेंट, उन्होंने कहा था कि श्रेयस अय्यर में एक दिवसीय क्रिकेट का डीएनए बसता है। केएल राहुल को सब जानते ही हैं, केएल राहुल बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। अपने समय पे जो उन्होंने दिखा दिया है, वो 400 बनने नहीं चाहिए थे नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन वो केएल राहुल की करामाती पारी, 64 गेंदों में 100 बनाए, वहीं पे 94 गेंदों में 128 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने। तो ये तो रही बात, आपने बात बताई, मैंने थोड़ी सी इसमें बात ऐड की। अच्छा, थोड़े दिन बीते दिन की भी यदि मैं बात करना चाहूं कि एक हम लोग आस लगा रहे थे, 44वां मैच था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, कि इंग्लैंड पाकिस्तान में मैच होगा, इंग्लैंड अपने प्राइड के लिए खेलेगा, उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, और पाकिस्तान भी जीता नहीं है तो कहीं ना कहीं एक जीत झोली में ले जाना चाहेगा और इंग्लैंड के रास्ते को बंद करेगा। हुआ ऐसा नहीं, इंग्लैंड ने टॉस जीता, आपने बता ही दिया, भारी भरकम स्कोर बनाया 337 रन। क्या वो पारियां खेली सबने, भाई वाह, मन मोह लिया, इतनी बड़ी बड़ी पारियां, और अंत में तो जाके क्या स्ट्रोक्स लगाए भाई उन सब लोगों ने। पहले तो मलान आउट हुए, लेकिन अपना काम करके आउट हुए। बेस्ट्रोक के 61 आए, एक अर्धशतक आया उस समय। बेस्ट्रोक के बाद एक लंबी चौड़ी साझेदारी रूट और स्ट्रोक्स की, उसके बाद कुछ जल्दी विकेट तो लिए, लेकिन आनंद फानन में इंग्लैंड ने भी बहुत रन बना दिए। वो कौन भूल सकता है डेविड विली की वो आखिरी पारी, महज 3 गेंदों में, शायद 4 गेंदों में 10 रन की वो, 4 गेंदों में 14 रन, सॉरी 4 गेंदों में 14 रन की वो पारी, 3 चौके, 2 चौके और 1 छक्का, जी 4 गेंदों में 14 रन की वो पारी आउट होने से पूर्व। तो उसके बलबूते पे पहुंचा इंग्लैंड। और पाकिस्तान, बेन स्टोक्स ने भी 86 रन बनाए थे। जी हाँ, स्टोक्स के 86। तो कौन भूल सकता है, बहुमूल्य योगदान था, क्योंकि उनको अपने आप को सिद्ध करना था कि इंग्लैंड यूं ही 2019 की चैंपियन टीम नहीं है, दमखम है, लेकिन कुछ यदि कमी थी तो एप्लीकेशन की थी। पाकिस्तान 338 का पीछा करने आया, बहुत जल्दी विकेट खोए, मगर बमुश्किल वो 240 तक पहुंच सके। उसमें भी रऊफ जैसे प्लेयर का भला मानिए, जो 17 गेंदों में 34 रन बना के, बल्कि ज्यादा बनाए थे उन्होंने, 40 के आसपास रन बनाए थे और ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे उन्होंने। वही चीज है। तो वैसा हो न सका और इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंच ही तो गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने सारे मैच जीते, अफगानिस्तान वाला मैच जीता, जब से हमारा शो नहीं आ पाया। तो बता दूं, 7 विकेट हो गए थे महज 91 रनों पे, एक डबल 100 जो इस विश्व कप का इकलौता डबल 100 है वो मैक्सवेल के नाम आया। इकलौता सबसे तेज शतक वो मैक्सवेल के नाम आया 40 गेंदों में। क्या मैक्सवेल ने नहीं किया, लेकिन मैक्सवेल घायल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाद में बात करेंगे कि मैक्सवेल खेलेंगे या नहीं। इंडिया के बारे में मैं भी आपसे कुछ काउंटर सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बताइए सर्वप्रथम, न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के लिए ज्यादा चुनौतियां कौन पैदा कर सकता है बैटिंग में? 2 प्लेयर्स,
Kane Williamson or Rachit Ravindra. These are two players who can be very dangerous on the given day. So India will have to be very careful. Even Bumrah, Shami, Siraj will have to be very accurate in their line and length. अगर बॉल इधर उधर हुई, if it will be in arc, it will be out of the park. मैदान चाहे जितना बड़ा मुंबई का, बाउंड्री थोड़ी छोटी है बनस्पत और मैदानों के, तो छक्के ज्यादा लगते हैं और बॉल ऊपर ज्यादा जाती है. ऊपर जाने के मतलब ये है कि छत पार हो जाती है, कई बार बाहर चली जाती है स्टेडियम के. तो रचिन रविंद्रा ऐसे प्लेयर हैं. विलियमसन तो छक्के ज्यादा नहीं लगाते, चौकों में यकीन करते हैं, बट रचिन रविंद्रा क्या कला है उनके अंदर, इनिंग को बुनना जानते हैं. और मैं समझता हूं कि भारत ने अगर इनको जल्दी आउट नहीं किया, मुसीबत हो सकती है. और रचिन रविंद्रा और डेवोन कॉनवे को कौन भूल सकता है. वो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको और निखारा है. जब से चेन्नई में गए हैं वो खुद मानते हैं डेवोन कॉनवे की धोनी ने उनके साथ काम किया है और दिन दर दिन उनकी प्रतिभा और निखरती गई है. कल डेवोन कॉनवे भी होंगे, वहां पे विलियमसन भी होंगे, रविंद्रा भी होंगे, मिचेल भी होंगे, साथ में टॉम लेथम भी होंगे. चुनौतियां कम नहीं है. काफी चुनौतियां हैं. खैर, अच्छा, गेंदबाजी में आपको क्या लग रहा है, भारत के लिए ट्रेंट बोल्ट ज्यादा खतरा है या फर्गूसन या सऊदी या सेंटनर? सऊदी शायद थोड़ा सा ऑफ टारगेट लगे इस वर्ल्ड कप में मुझे, और अब उनकी उम्र भी हो चली है, शायद ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, तो मुझे लगता है इनको टारगेट करेगा भारत, और करना भी चाहिए, क्योंकि कई बार उनकी बॉलें उतनी लाइन और लेंथ पर नहीं आती. हालांकि अपने दिन पर बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, ये ना बोले आप. लेकिन मुझे लगता है शायद अगर तो वो सेंटर पिच पे मैच होगा तो शायद ट्रेंट बोल्ट की बॉल उतनी ना हिले, फर्गूसन ज्यादा अटैकिंग हो सकते हैं, ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं उसमें. जाहिर सी बात है. और ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत कहीं स्पिनिंग ट्रैक ना बना दे. अगर स्पिन बनाता है तो कुलदीप, जडेजा भारत की तरफ से हैं, तो उधर रचिन रविंद्रा, सेंटनर भी स्पिन कर लेते हैं. तो इन चीजों का ध्यान. आपका क्या मन कर रहा है? अच्छा, न्यूजीलैंड या इंडिया? मतलब मन मत कहिए, भावनाओं में नहीं जाऊंगा, भावनाओं में नहीं बहना आपको. जो रियल में लग रहा है कि ये होगा. देखिए, जब भी कोई कुछ प्रेडिक्ट करता है, चाहे इलेक्शन में हो चाहे कहीं, डेटा के आधार पर प्रेडिक्शन होती है. और अभी तक का जो परफॉर्मेंस है भारत का, दैट हैज बीन एक्सीलेंट. दे हैव बीन कंप्लीटली डोमिनेंट इन होल टूर्नामेंट टिल दिस गेम. 9 out of 9 and 9 comprehensive victories. Not the victories only, they are very comprehensive and convenient victories. जो 9 भारत ने मैचेस जीते ना, ऐसे नहीं कि बस आराम से नहीं जीते, ऐसे वैसे आराम से जीते, मजे से, जिसको कहते हैं पूरी तरीके से. अगले आप सोचो ना, 229 बनाने के बाद भी 100 रन से मैच जीत जाता है भारत भाई. तो इससे ज्यादा डोमिनेशन और क्या दिखाएगा कोई टीम. आई जस्ट बिलीव, इट्स माई विश कि इंडिया जीते, बट इट लुक्स लाइक इट विल बी न्यूजीलैंड्स गेम. अच्छा, ये बताइए आप, मेरा एक और सवाल आपसे है. आपने 9 के 9 मैच भारत के देखे, 9 ग्राउंडों पे देखे, और मैं ये जानना चाहता ऐसा कौन सा चेक बॉक्स है जिसको भारत ने अभी तक चेक नहीं किया है, टिक नहीं किया? ऐसा कौन सा बेंचमार्क है जिसको भारत ने टिक नहीं किया है और वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा बन सकता है? आई थिंक कभी कभी एक आध बार ऐसी सिचुएशंस में भी आई हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा मैच रहा होगा वो, जब भारत टेलेंडर्स को आउट नहीं कर पा रहा था, जरा समय लग रहा था, तो जल्दी रैप अप करना आना चाहिए भारत को. और उस समय पेस बैटरी का शायद सही इस्तेमाल किया जाना जरूरी है जब आपको पारी को रैप अप करना हो. कि मिडिल ऑर्डर ठीक है, लोअर मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट हुआ नहीं है. जडेजा एक आध मैच में ही रन बनाए उन्होंने, 1-2 मैचेस में, उतना टेस्ट हुआ नहीं. ये शायद चिंता का विषय बन. अगर भारत के 3-4 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, 4-5 विकेट अगर जल्दी जल्दी भारत ने गवा दिए, तो वो एबिलिटी, क्योंकि हार्दिक पांड्या है नहीं, आप ये याद रखें, हार्दिक पांड्या है नहीं, और ज्यादातर चेहरे वही हैं इस टीम में जो 2019 का विश्व कप खेले. आप देखें, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, और कौन था उसमें अश्विन भी शायद थे 19 में, कुलदीप वगैरह, सब लगभग प्लेयर्स थे.
हाँ, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे, अय्यर जैसे लोग, ये राहुल भी थे गिल उस, गिल गिल, जैसे लोग नए हैं। बुमराह थे उसमें, शमी भी रहे होंगे। शमी को शायद सेमीफाइनल में खिलाया नहीं था अगर मैं ठीक हूँ तो सिराज का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 2019 में थे कि नहीं थे, बट शायद नहीं रहे होंगे क्योंकि बीच में भी वो चमके हैं। तो मिली जुली टीम है, एक्सपीरियंस्ड और युवा या फिर यंगस्टर्स की टीम है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है कि भारत को जल्दी से रैप अप करना चाहिए और लोअर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि आपको बैटिंग करनी है भाई। अगर हम 150 पे 5-6 हो जा रहे हैं तो आपको कम से कम खसीट के ले जाना 250 तक, ये कला आनी चाहिए। जी हाँ, यदि 100 पे हम 4 होते हैं, 4 का मतलब दोनों ओपनर विराट कोहली, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। इसका मतलब ये है कि केएल राहुल और सूर्या की बैटिंग आएगी। वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि जडेजा के बाद वो बैटिंग नहीं है। एक बार टेस्ट हुई थी, आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ ही वो टेस्ट हुई थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ था वो शायद, नहीं इंग्लैंड के खिलाफ था, जिसमें 229 तक भारत पहुंचा था। अच्छा आप पहले बैटिंग करने की बात, 200 पे ही 5-6 विकेट हो गए थे। हाँ, फिर जडेजा ने एक थोड़ी सी कैमियो खेला और वहां पे 229 में जसप्रीत बुमराह ने काफी रन बनाए थे। उस मैच में शामी आउट हो गए थे जल्दी, बुमराह ने आके रन बनाए थे। तो वो एक मैच था, अदरवाइज भारत के पास ऐसी स्थिति। न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो मैच था जिसमें भारत को जीतने के रन चाहिए थे, विकेट हो गए थे, तो 272 वो दूसरा मैच था, सुनिए, उसमें 200 पे 5 हो गए, उसमें कोहली खड़े थे, जडेजा और कोहली ने वो मैच को दिया था, फिनिश किया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ भारत और इंग्लैंड का, मुझे याद है उसमें 6 विकेट भारत ने खो दिए थे 210 के आते आते, लेकिन वो 20 रन एक्स्ट्रा, वो बुमराह की मेहनत थी, वो वहां रन बने, ये हुआ। हर दिन बुमराह नहीं है काम आएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर से, लेकिन जब बुमराह और शामी को बैटिंग करनी पड़े तो कहीं ना कहीं आपके बैटिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर है, और ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। अच्छा, क्या हम अश्विन के साथ जा सकते हैं क्या? किसको हटाएंगे आप? नहीं, मेरा अपना मानना है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। शायद अश्विन को इस विश्व कप में एक ही मैच खिलाया है मुझे लगता है, या और ज्यादा, एक आध 2 मैच खिलाया। हाँ, एक ही मैच मुझे लगता है खिलाया, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। जी हाँ, उसके बाद से कोई टीम में बदलाव हुए नहीं, क्योंकि भारत लगातार जीतता आया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, सिराज की कितनी चोट गंभीर है, या उनकी फिटनेस या वो चोट का क्या अपडेट है आपके पास? हाँ, ऐसी कोई भी अशुभ समाचार नहीं है। सिराज फिट हैं, वो मैच का हिस्सा होंगे, और हालांकि अभी अपनी 11 तो भारत कभी बताता नहीं है, तो आप जानते ही हैं भारत कभी भी अपनी 11 नहीं बताता है, तो ये पाकिस्तान जैसी टीम करती आई है वो। अच्छा, आपको लगता नहीं कि एक बार अपनी 11 आपको बता देनी चाहिए पहले, ताकि अगली टीम, या फिर नहीं, 2 चीजें हैं। देखिए, ये एक दुधारा तलवार है, या यूं कहूं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बताने से पहले आपको मैं बताऊं फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा, वो प्लेयर मेंटली तौर पे वो प्लेयर तैयार हो पाएगा, है ना। जो जिसको भी खिलाना है आप बताएंगे तो अब मेंटली प्रिपेयर हो पाएगा, मुझे किस गेंदबाज को खेलना है, किसके खिलाफ कितनी योजनाएं बनानी है, उनका क्या क्या मुझे करना है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, यदि वो प्लेयर मेंटली तौर से तैयार होगा तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाज भी उसके खिलाफ कोई अतिरिक्त जाल बिछा सकते हैं, है ना, जिसके के कारण पूरी पारी तहस नहस ना हो जाए। इस डर से मुझे लगता है भारत कुछ चीजें छुपा के रखना चाहता है। ये आज की टेंडेंसी नहीं है, ये आपको मैं याद दिलाता चलूं, जब एक वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक 2011 का ही वर्ल्ड कप था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जब अश्विन को ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में खिलाया, सुपर 8 में, यानी तब तक मैच खिलाया नहीं गया और डायरेक्ट सुपर 8 में ही मैच खिलाया गया, और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन्होंने क्या बेहतरीन बॉलिंग की थी पावर प्ले में। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए
ये तो दोनों के दो तरीके हैं जिनको आप जिस हिसाब से समझना चाहें, लेकिन मेरा अपना मानना है प्लेइंग 11 डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेइंग 11 डिक्लेयर होने से ना विपक्षी खेमे को सांस लेने का एक मौका मिल जाता है। वो आपके खिलाफ कोई भी चक्रव्यूह रच सकते हैं, इसीलिए कुछ तो यार वो होना चाहिए ना, तभी तो टॉस की महत्वता होगी, तभी तो लोग टॉस देखेंगे कि यार टीम में क्या चेंज है, टीम में कौन है कौन नहीं है, नहीं तो टॉस की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी यार। एब्सोल्युटली, बट पता नहीं पाकिस्तान क्यों करता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन करता है। आपको पता होना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, हर काम हमारे से उलट काम उनके होते हैं। बिल्कुल। उनकी कोशिश ये रहती है जो काम हो वो उनका उल्टा अपोजिट करे, वो है ना। अब नहीं, पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता है, उसकी तो कोई बात नहीं है। शोएब अख्तर को मैं सुन रहा था। अच्छा, आज शोएब अख्तर स्विच पे कुछ बयान दे रहे थे। शोएब अख्तर को मैं सुन रहा था तो जी न्यूज पे, तो कह रहे थे कि भाई इंडिया को तो कोई हरा नहीं सकता। अब पता नहीं वो व्यंग्य में कह रहे हों या असलियत में कह रहे, क्योंकि उनके कहने पे भी ना अब कहीं ना कहीं संशय नजर आता है। हाँ, प्रश्न चिन्ह नजर आता है। तो ये चीज है। बाकी दूसरी मुझे लगता है वर्ल्ड कप के इस मैच पर हमने बहुत डिस्कशन कर लिया। कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि हम गोल्डन बैट की बात करें। गोल्डन बैट में यदि है टॉप 3 स्थानों की बात करें, उनमें पहला स्थान अब भारत के क्या कहूँ, मॉडर्न मास्टर कह सकते हैं, चीज रन मशीन कह सकते हैं, रन मशीन कह सकते हैं, विराट कोहली जी। किंग कोहली के नाम अब पहला स्थान है इस विश्व कप में। जो गोल्डन बैट का जो स्थान होता है, जो सर्वाधिक रन बनाते हैं, उस सूची में विराट कोहली नंबर 1 पे आ चुके हैं और उन्होंने 594 रन बना डाले। 594 रन बनाए हैं। जी हाँ, 594 रन। ध्यान रखिए, जो 2 शतक लगाए हैं उन्होंने, वो दोनों नाबाद शतक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मुझे लगता है ऐसा किसी के साथ नहीं है इस टूर्नामेंट में कि जो शतक लगाए, दोनों शतक लगाए और दोनों में वो नाबाद हो, शायद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्विंटन डी कॉक, दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज, जो अब रिटायर होने की कगार पे हैं। उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है कि मैं अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा हैं। भारत में उनको काफी मजा आता है, अच्छा लगता है, और वो भारतीयों को दिखाना भी चाहते हैं। क्या कल भारतीयों के खिलाफ अपना दम दिखा पाएंगे? एक भारतीय। जी हाँ, ये बड़ी गड़बड़ बात है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। विराट कोहली और सचिन रविंद्रा, आप बताइए कौन आगे निकलेगा? I think विराट कोहली, he is more experienced. Yes, Ravindra is a very talented batsman. He can be very dangerous. बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, but again विराट कोहली tons of experience. सचिन रविंद्रा को आगे निकलने के लिए एक काम करना पड़ेगा, बुमराह, शामी और सिराज के पहले स्पेल को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन विराट कोहली बच सकते हैं क्योंकि वो बाद में आते हैं। हाँ, फर्गुसन, साउदी और वोल्ट से बच सकते हैं। वोल्ट को मैं ज्यादा खतरनाक मान रहा हूँ। बिल्कुल, वोल्ट ज्यादा खतरनाक है अगर बॉल हिली, मान रहा हूँ। और वोल्ट से यदि विराट कोहली बच गए और सेंटिनल से बच गए, तो मैं नहीं मानता विराट कोहली को इतनी दिक्कत होने वाली है। और सेंटिनल से भी ज्यादा खतरनाक मैं वोल्ट को मान रहा हूँ, ऑन एयर में कह रहा हूँ। और वहीं पे यदि रचिन रविंद्रा की हम बात करें, तो मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, बुमराह, तीनों से बचना होगा, क्योंकि तीनों ही गेंदबाजों के ओवर पावर प्ले में ही आ जाते हैं। मैं पिछले कई मैचों से देख रहा हूँ। बिल्कुल, और फिर उसके बाद कुलदीप और जडेजा भी कम खतरनाक नहीं है। हालांकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं रचिन रविंद्रा, नो डाउट, लेकिन अपने दिन पे वो दोनों बड़े घातक बॉलर्स हैं। जडेजा ने 5 विकेट्स भी लिए इस विश्व कप के एक मैच में। अच्छा, अंतिम सवाल, क्विंटन डी कॉक, रचिन, विराट, 3 में से कौन बाजी मारेगा? विराट कोहली। अगर इंडिया को ना कोई और नहीं है। अगर विराट कोहली को एक मैच और मिलता है फाइनल,
इट विल बी विराट कोहली। अदर देन दैट डिपेंड करेगा कि किसको एक मैच और मिलता है, वो बता पाना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए विराट कोहली कल 150 मार गए, मोटा मोटा मान लीजिए, तो विराट कोहली के पास होगा कितना 554 प्लस 150 यानी कि 744। हाँ ठीक है जी। तो फिर अभी क्विंटन डिकॉक का 2 मैच बचा हुआ है। क्विंटन डिकॉक कहाँ पे है? 565 के आसपास, 594 591 सॉरी 591। अगर क्विंटन डिकॉक 2 मैचों में भी एक में 100 और एक में 70-80 मार गए तो विराट कोहली आगे चले जाएंगे। जी हाँ। तो ये अभी बता पाना मुश्किल, बट आई विश विराट कोहली आगे जाए और 50वां शतक शायद इस विश्व कप में आपको देखने को मिल जाए, जो सचिन तेंदुलकर से आगे जाने के लिए। सचिन के 565 रन हैं, कहाँ तक देख रहे हैं? उन्हें भी 2 मैच मिल सकते हैं। अगर कल इंडिया हार जाए तो 2 मैच वो भी पा सकते हैं। तो लेकिन विराट और सचिन में से एक ही आदमी 2 मैच खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक ही खेलेगा। खैर बहुत आईपीएल के हवाले से कुछ थोड़ी मोड़ी खबरें हैं, वो ये बेन स्टोक्स को रिलीज कर देगा सीएसके और कलकत्ता भी फर्गुसन को छोड़ने वाला है। ये तो एक चीज। उधर पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच एलबी मॉर्कल है, उन्होंने इतना इस्तीफा दे दिया है, ये बात आप जानते होंगे। और पाकिस्तान श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी ने बर्खास्त कर दिया है। मैं उसी के बारे में बताने वाला था, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। वो क्यों बर्खास्त हुआ है, कह रहे हैं भारत ही उसकी वजह है, लेकिन वजह जो भी हो, जब भारत के खिलाफ पहले 50 पे आउट हुआ, फिर 55 पे आउट हुआ, वहां पे ड्रामा चला और वहां की सरकार ने उस बोर्ड को भंग करने का फैसला किया, वहां के खेल मंत्री राणा सिंघे ने। उसके बाद फिर वहां की न्यायालय ने उसको बहाल कर दिया। फिर न्यायालय के सब होते करते जब बीसीसीआई ने देखा कि वहां पे जो है खेल में भी वहां की सरकार का हस्तक्षेप है, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। और फिलहाल आईसीसी ने और कार्यवाहक पोस्ट पे अभी फिलहाल अर्जुन रणतुंगा वहाँ है। हालांकि 21 तारीख को अहमदाबाद में एक मीटिंग शेड्यूल्ड है आईसीसी की, और उसमें वो श्रीलंका बोर्ड से कोई और नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन रणतुंगा को मौका मिलेगा उनको अपनी बात रखने के लिए। और उसमें भारत जिम्मेदार नहीं है भाई, भारत ने उनको ऑल आउट करे, सो भारत की क्या गलती? वो बात ऐसी लोग कह रहे हैं कि भारत जिम्मेदार है, लेकिन भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत ने तो क्रिकेट के लिए आपने खराब क्रिकेट खेली। और हम क्या करें भाई? इस विश्व कप में बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ? टाइम आउट भी हो गए, एंजेलो मैथ्यूज, उससे बहुत बवाल हुआ। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये सही था टाइम आउट का निर्णय, कि यदि कोई चीज है सिस्टम में तो वो देनी चाहिए। नहीं, मैं राहुल द्रविड़ से सहमत नहीं हूँ यहाँ पे। अच्छा, वो इसलिए मैंने आपको एक बार इसका विश्लेषण किया था मैंने पूरी तरीके से एक शो में। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था कि दूसरी बात, जो काम वो कर रहे थे वही काम तो उस दिन मैक्सवेल भी कर रहे थे। हाँ। बार बार टाइम खर्च हो रहा था, बार बार वो हेलमेट मंगा, बार बार वो जो है वो अपनी फिजियो को बुला रहे थे, उनको क्यों नहीं रोका गया? नहीं तो वो तो नियम में लिखा ही नहीं है ना। नियम में तो ये लिखा है कि बैट्समैन के आउट होने के बाद अगर आने में देर हो तब तो, और कुछ लिखा ही नहीं है ना। ऐसा तो कोई बायलॉज ही नहीं रखा है आईसीसी ने ना, एमसीसी को। दूसरी बात, इसमें एक और चीज हुई, बेल्स पे गेंद लगी, स्टंप पे गेंद लगी और बेल्स नहीं गिरी, ये तक तो आपने सुना होगा। बेल्स में लाइट नहीं जली, ऐसा भी इस विश्व कप में ये टेक्निकल इशू रहा होगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं हो सकता। विश्व कप में हुआ था एक और सीन हुआ था कि बेल्स जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एब्सोल्युटली टूट गई थी, राइट। तो ऐसा भी ये कुछ वाकये हैं। और एक और चीज अभी कल परसों हुई है, अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर नसीबुल्लाह सादरान, नहीं सॉरी गुरबाज माफ करिए, रहमानुल्लाह गुरबाज, वो अहमदाबाद में गरीबों की हेल्प की है। एब्सोल्युटली। और ये ना बड़ा जबरदस्त जेस्चर है भाई, आई जस्ट सैल्यूट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, द वे ही डिड, बीइंग नॉट एन इंडियन। वो अफगानी थे भाई, उनको क्या मतलब भारत में क्या हो रहा है यार। बट अगेन वो अपनी कार से जा रहे थे, और जबकि उनका कैंपेन खत्म हो गया है, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। जी हाँ, क्या वो कार से जा रहे थे? बताइए सब लोगों को बताइए। नहीं, वो कार से जा रहे थे उनको, और उसके बाद उन्होंने देखा कुछ फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे थे, तो उन्होंने 500 की गड्डी ले रखी थी। अब वो किसी और काम के लिए हो सकता अपने घर ले जा रहे हैं, जो भी उनका रीजन वो नहीं पता।
अफगानिस्तान में हालांकि करेंसी अलग है, तो फिर भी वो एक्सचेंज करा सकते हैं भारत की करेंसी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जितने बंदे सो रहे सबके पास एक एक नोट करके 500-500 के रखते चले गए कि वो लोग अपनी दिवाली ढंग से मना लें। तो ये इतनी जबरदस्त दरिया दिली वो मतलब बड़े कम लोगों में होती है। यस, सचिन तेंदुलकर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। उन्होंने कई बार गवर्नमेंट्स की हेल्प की है। देहरादून फ्लड में 2.5 करोड़ रुपए, तमाम सारी चीजें सचिन ने की है। एक स्कूल को पूरा फंड करते हैं, ब्लाइंड स्कूल है मुंबई में, आपको पता होना चाहिए। जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं विजुअली चैलेंज्ड हो ज्यादातर, तो उनको पता होना चाहिए बात कि एक स्कूल है सचिन तेंदुलकर का मुंबई में। तो ऐसे बड़े बिरले क्रिकेटर्स होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो आई जस्ट सैल्यूट, और मैं सलाम करता हूँ जज्बे को उनके। निश्चित तौर से अब मुझे लगता है कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चुका है। तो हाँ, दीजिए हम दोनों को इजाजत, और इस अंक में बस इतना ही। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और इंतजार कीजिए अगले अंक का। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।